Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about registers. Commercially produced registers for domestic as well as laboratory use are of two major types. Number one, wire bound registers, and second, carbon registers. In wire bound registers are made by winding of alloy wire, that is magnenin, nichrome, etc. These wires are chosen because their resistivities are relatively insensitive to temperature. These resistances are in the range of fraction of an ohm to a few hundred ohm, as shown in figure. For example, rheostat is example of wire bound resistors. Number 2, carbon resistors. Resistors of range higher than wire bound resistors are mostly made of carbon. Carbon resistors are small, compact, and less expensive, so are used widely in electronic circuits. Their resistances are measured from their color code. You can see small cylindrical type resistances where there are color bands. So you can see many color band cylinders here. These are known as carbon resistors. The size of carbon resistor is very small, so value of resistor cannot be written on its body. Therefore, a standard color code is used to determine the value of resistors. Students, there are total 10 colors as shown in figure. These colors are used as a band from black color to white color and coding 0 to 9. जैसे ब्लैक कलर का कोड होता है 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 एंड वाइट 9. अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए स्टार्टिंग विथ ब्लैक एंड विथ वाइट कलर. ओके, दो कलर्स हो गए. अब देन ब्राउन एंड ग्रे, ये एक्सट्रीम कलर्स याद रखने. और बाकी बीच में रेड टू वायलेट, दिज आर द कलर्स ऑफ रेनबो. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट. ओके, नाउ देयर आर अगेन 3 कलर बैंड्स, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर. Every resistor has set of coaxial 4 color rings marked on it. As shown in figure, there is a resistor over the table. Okay, students. Always we have to count the color ring from the left end of the resistor. Okay, the band close to one end, that is left end of resistor, is considered as the first band. The first and second band represents the first and second significant digits respectively. The third band represents the multiplier. The fourth band indicates the tolerance of the resistance as a percentage of its indicated value. If the fourth band is of silver color, the tolerance is 10%. If it is of gold color, it is 5%. And if there is no color, then the tolerance is of 20%. अब देखिए टेबल के ऊपर जो रजिस्टर्स दिया है, लेफ्ट साइड से कलर रिंग अगर हम काउंट करते हैं तो फर्स्ट बैंड कौन सा है? येलो बैंड है. ओके, सेकंड वायलेट कलर का है, थर्ड ब्राउन कलर का है, और फोर्थ बैंड जो है दैट इज़ ऑफ गोल्ड. ओके स्टूडेंट्स, अब येलो कलर का कलर कोड कितना है? 4, वायलेट 7, और थर्ड कलर बैंड जो हमें मल्टीप्लायर लेना है तो उसका कलर कोड कितना है? ब्राउन का 1. सो इंटू 10⁻1 मतलब 10. तो 47 इंटू 10 दैट इज़ 470 ओहम. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस resistance. Okay, and फोर्थ कलर बैंड यहाँ पर
गोल्ड दिया है, इसका मतलब टॉलरेंस कितना होगा, ±5%। मतलब इस कलर कार्बन रजिस्टर की वैल्यू ±5% कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 470 ओहम, राइट। एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नाउ यू कैन सी अ रजिस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फर्स्ट बैंड इज रेड, सेकंड इज ऑल्सो रेड, थर्ड इज ब्लैक एंड फोर्थ इज गोल्ड। अब फर्स्ट बैंड रेड, उसका कलर कोड होता है 2, सेकंड बैंड भी यहाँ पर रेड है तो उसका कलर कोड होगा 2, मतलब 22, ओके। एंड थर्ड बैंड इज ब्लैक, ब्लैक कलर का कलर कोड होता है 0, सो 10⁻0 का मतलब होता है 1, सो 22 × 1 दैट इज़ 22 ओहम, ये इसकी वैल्यू होगी। और टॉलरेंस कितना है, ±5%, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से किसी भी अगर रजिस्टर का कलर बैंड दिया है तो उसके आधार पर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम देखेंगे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो एज यूजुअल हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, उसी आर्टिकल का यहाँ पर रिवीजन होगा ये। नाउ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, कंसीडर देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस और उनकी वैल्यूज R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज का मतलब क्या होता है, वन आफ्टर अनदर, दैट मींस द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस connected to second terminal of first, okay, then second terminal of second resistor is connected to first terminal of third and so on. So this is known as resistances connected in series. Suppose a cell is connected, okay, and V potential is applied across the series combination. मतलब इस series combination के across total potential कितना होगा, V होगा, right? Now we know that current withdraw from the cell and it moves from positive to negative, right? Suppose I current flows through it, so we know that in series combination current passes through each resistance is I, okay, same current pass होता है through the resistances when they are connected in series. Now अगर हम वोल्ट मीटर का एक पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल होगा सपोज V1, बिकॉज जो भी टोटल पोटेंशियल अप्लाइड होता है, नाउ इट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर्स, ओके। सपोज द पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस इज V2 एंड अक्रॉस थर्ड रेजिस्टेंस इज V3, ओके। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टोटल पोटेंशियल अप्लाइड इज डिवाइडेड इनटू V1, V2 एंड V3, तीनों की एडिशन टोटल पोटेंशियल अप्लाइड की इतनी रहती है। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये फार्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू IR, राइट, वेयर V is total potential applied across the series combination, I current passing through each resistances, and let this R is the equivalent of this series combination. Suppose 3 resistances are connected as shown in figure, series R1, R2, R3, इनका equivalent, okay, resistance अगर R है तो ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। Similarly this formula can be applied for individual resistances, ठीक है। देखिए V1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, by using this equation, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3। अब ये इक्वेशंस यहाँ पर रखने वैल्यूज, ठीक है। तो V के लिए IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3। अब यहाँ पर I कॉमन निकलेगा और वो I इस I के साथ कैंसिल हो जाता है, सो हमें ये इक्वेशन मिलता है, ओके। So these resistances are connected in series, so we write here suffix S. So RS is equal to R1 plus R2 plus R3, okay student। Now
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाता है? जस्ट एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, राइट? n रेजिस्टेंसेस आर सपोज कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पर Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जस्ट एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। देन सपोज n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? ओके, Rs इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस अप टू n टाइम्स R, सो इट इज nR। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा n टाइम्स द वैल्यू ऑफ सिंगल रेजिस्टेंस। सो इन दिस वे अगर हम रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं इन सीरीज, ओके, तो वहां पर इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा होता है, उनकी एडिशन होती है। इसलिए अगर किसी सर्किट डायग्राम में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? फिर सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ सपोज 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर। ओके, अब पैरेलल मतलब क्या होता है कि फर्स्ट terminal of each resistance is combined. Suppose this is point A and second terminal of each resistance is also combined. Let this is point B. तो दो common point के बीच resistance is connected है। Now let this combination is connected across the same. So potential कितना है? यहाँ पर अप्लाइड होगा V potential अप्लाइड होगा। Okay. Now V potential is applied बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, तो इसका मतलब R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? V, R2 के अक्रॉस V और R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम रहेगा, दैट इज V। मतलब यहाँ पर अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस पोटेंशियल सेम अप्लाइड है। अब देखते हैं करंट कैसा होगा। यहाँ पर करंट I विथड्रॉ फ्रॉम द सेम। ओके, अब यहाँ पर आने के बाद नाउ देयर आर 3 वेज, सो करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड and that distribution is takes place according to the value of resistances। हमें पता है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो करंट कम जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम है तो करंट ज्यादा पास होगा। ओके, तो according to the value of resistances that current I get distributed। Let current I1 passes through resistance R1, current I2 passes through resistance R2 and current I3 passes through resistance R3। now this I1 I2 I3 combine होने के बाद फिर से टोटल करंट I बन जाएगा, ठीक है, and return to the negative terminal of the battery। okay स्टूडेंट, now यहाँ पर भी ओम्स लॉ अप्लाई करना है to find out the equivalent resistance। suppose टोटल पोटेंशियल कितना है यहाँ पर? V, टोटल करंट I। let the equivalent resistance of these 3 combination parallel combination, okay, is R। तो ये जनरल फार्मूला हो जाता है V is equal to IR, तो I is equal to V upon R। अब इंडिविजुअल करंट के लिए हमें इक्वेशंस यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon I3। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वैसे यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन पोटेंशियल कैसा रहेगा? यहाँ पर सेम रहता है, ठीक है। तो इसलिए फिर टोटल करंट I is equal to I1 plus I2 plus I3। नाउ अभी इक्वेशंस यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखते हैं। I that is V by R, I1 V by R1 plus V by R2 plus V upon R3। अब यहाँ पर V कॉमन निकलकर इस V के साथ वो कैंसिल हो सकता है। So therefore 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो यहाँ पर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम P सफिक्स लिखते हैं यहाँ पर। So फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 upon RP, RP stand for parallel equivalent resistance, is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। So रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मतलब एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ओके, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगी, राइट। सपोज n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फार्मूला क्या हो गया यहाँ पर?
1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 dash up to 1 upon Rn. Okay students. Now in suppose n identical resistances are connected in parallel. So 1 upon Rp is equal to 1 upon R plus 1 upon R up to n times 1 upon R. So that means n upon R. और therefore अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो Rp की वैल्यू क्या होगी? R डिवाइडेड बाय n. जैसे यहाँ पर Rs इज इक्वल टू एन आर, यहाँ पर Rp इज इक्वल टू R बाय n. राइट स्टूडेंट? मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज करना है हमें? अगर किसी सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस की वैल्यू, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी है तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे. राइट स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पर सपोज n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? Rs इज इक्वल टू nr. अगर वही n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? Rp इज इक्वल टू R बाय n. अगर हम दोनों का रेशियो लेते हैं, देखिए Rs डिवाइड बाय Rp इज इक्वल टू Rs की वैल्यू nr डिवाइडेड बाय Rp R बाय n. यहाँ पर ये R कैंसिल हो जाएगा, n ऊपर आ जाएगा, दैट मींस n into n स्क्वायर. ओके, दैट मींस अगर हम 10 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, तो दोनों कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज होंगी उनका रेशियो क्या होगा? n स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर 100. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल. तो यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएट पॉइंट्स भी आपको समझ में आ रहे होंगे. अगर हम रेजिस्टेंसेस सीरीज कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंसेस इज सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा. ओके, जैसे यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट डिफरेंट होगा. ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. सीरीज कॉम्बिनेशन हम कब यूज करेंगे? इन सर्किट डायग्राम टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सर्किट डायग्राम. राइट स्टूडेंट्स?